میں خوش آمدید۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے عمران خان کو پھر نشانے پر لے لیا۔ کہتی ہیں 2018 والی سلیکشن کمیٹی ٹوٹ گئی، سلیکٹرز گھر چلے گئے، وہ کان پکڑ رہے ہیں، اب ان کی کہانی ختم ہو گئی۔ اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بولی عمران خان نے ایوان صدر میں خفیہ ملاقات اس لیے کی کہ شاید سازش کا موقع مل جائے، لیکن ملاقات ناکام ہوئی تو سب میر صادق اور میر جعفر بن گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان جتنے چاہیں پلاسٹر لگا لیں، انہیں بشرا بی بی کی رشوتوں کا جواب تو دینا ہوگا۔ آپ کی کہانی ختم، سازشوں کا دور ختم، سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں۔ 2018 میں تمہاری سلیکشن کمیٹی تھی نا، وہ اب ٹوٹ گئی ہے، اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں۔ سلیکشن کمیٹی ختم۔ وہ جو بابا رحمت تھا نا، بابا رحمت جو اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ بابا رحمت اس قوم کے لیے سب سے بڑا بابا زحمت بن گیا۔ الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں، مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی۔ آج مان گیا ہے، کہتا ہے کہ ایوان صدر میں میں نے ملاقات کی تھی، چھپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملاقات کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ شاید دوبارہ سے سازش کرنے کا موقع مل جائے، اور وہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی تو آج سب میر جعفر بھی ہو گئے، میر صادق بھی ہو گئے۔ جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ، گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو آپ کی بیگم صاحبہ نے 5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں رشوت میں لی ہیں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ نااہلوں کے ہاتھ میں ملک آتا ہے، ملک نیچے جاتا ہے تو پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ اور ملک کو ٹھیک کرو۔ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا IMF کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے، جو عوام کی تباہی کا IMF کا معاہدہ کر کے آرام سے جا کے زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا، اس کو لاتے، اس کو کہتے IMF سے مذاکرات کرو۔ جس نے ملک کو تباہ کیا ہے وہ اب اپنے مستقبل کی فکر کرے اور بنی گالا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے۔ نیب کے عقوبت خانے میں دشمن بھی نہ جائے، نیب کی قید میں انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باب پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پچھلے دور میں بے گناہ لوگوں کو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا، لیکن بے شمار ترقیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کا غبن ہوا، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے نظام کا دفن کر دینا چاہیے، ورنہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میری ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے، کیونکہ وہاں پر جو ناانصافی روا رکھی گئی، انصاف کا قتل عام ہوا، تو دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے۔ پچھلے ادوار میں بے گناہ لوگوں کو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں بھجوایا گیا، اربوں روپے کا غبن ہو گیا۔ کیا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی؟ یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز جس نے پاکستان کو اس تباہی کے دہانے پہنچایا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جب تک اس نظام کو مل کر دفن نہیں کریں گے، یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ اب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت انہوں نے گرائی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا سابق آرمی چیف پر الزام، کہا فوج کے اندر اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں شفاف الیکشن ممکن نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن اور ادارے ملے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان کا شوکت خانم اسپتال کے $3 ملین سے سرمایہ کاری کا اعتراف۔ خواجہ آصف کے خلاف ہرجانہ کیس میں عمران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی ہوئی، تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی اور شوکت خانم کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے احتیاط کے جائز یا ناجائز ذرائع کا پتہ چلایا جا سکے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے اسلم کھوکر۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس، درخواست گزار عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش۔ وکیل صفائی علی شاہ گیلانی کی جرح کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی نے بڑے اعتراف کر لیے۔ عمران خان نے تسلیم کیا کہ 2008 میں شوکت خانم کے فنڈ سے $3 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی، رقم ایچ بی جی گروپ کے پاس رہی جو 2015 میں واپس ملی۔ معلوم نہیں ایچ بی جی گروپ کے چیف ایگزیکٹو امتیاز حیدری پی ٹی آئی کے ڈونرز تھے یا نہیں، شیخ سلیم المشانی کو نہیں جانتا۔ خواجہ آصف کے وکیل نے یاد دلایا کہ آپ نے عمانی شہری شیخ سلیم المشانی کا نام ہرجانے کے نوٹس میں خود لکھا، جو امتیاز حیدری کے پارٹنرز ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق 2009 اور 2010 میں عمان پروجیکٹ میں $18 ملین ڈوبا۔
इमरान खान ने एतराफ़ किया कि फंड्स इकट्ठा करने के लिए वोटन T20 कप में खुद शिरकत की और 2 ऑफशोर कंपनियों में शौकत खानम अस्पताल का पैसा लगाया। PTI और शौकत खानम के पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे एहतियात के जायज या नाजायज राय का पता चलाया जा सके। चेयरमैन PTI ने वज़ीर दिफा के वकील से कहा, ये केस कुछ नहीं था, सिर्फ आपकी महारत की बुनियाद पर बनाया गया। आगे चलकर मैं आपको ही वकील करूँगा। मज़ीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। घेरा तंग होने लगा, तफसीलात कुछ ही देर में। अब आपको बताएं, इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। PTI रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज गिल की बगावत पर उकसाने का केस बाकायदा शुरू होने से कबल बच निकलने की कोशिश काम न आई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फर्द जुर्म से पहले बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत PTI रहनुमा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्कल के खिलाफ शवाहिद के तौर पर सिर्फ एक USB मौजूद है जो काबिल कबूल शहादत नहीं। पुलिस ने फॉरेंसिक मुआयने के लिए एक कंपनी की USB भेजी लेकिन वापस किसी और कंपनी की आई। ये शवाहिद टेम्परिंग का केस है, इसलिए बरी किया जाए। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सवाल उठाया कि क्या फर्द जुर्म के बाद शहादतें रिकॉर्ड किए बगैर शवाहिद का जायजा लिया जा सकता है? क्या शहबाज गिल इनकार कर रहे हैं कि USB में जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बातें उन्होंने नहीं कही? वकील ने जवाब दिया, ये सब साबित करना इस्तगासा की जिम्मेदारी है। अदालत ने दरखास्त बरियत मुस्तरद करते हुए हुक्म दिया कि शहबाज गिल 27 फरवरी को पेश हों। फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और अभी खबर यह है कि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की हुकूमत मुखालिफ मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। शौकत तरीन की IMF के हवाले से ऑडियो सामने आई थी। FIA ने हर पहलू से अब तफ्तीश को मुकम्मल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक शौकत तरीन को चंद रोज़ में गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आपको बताएं, MQM पाकिस्तान ने कल कराची में होने वाला धरना मौखर कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते हैं कि उसूल और मुतालबात से दस्तबरदारी किसी सूरत मुमकिन नहीं। अमन कॉन्फ्रेंस और मशक़ें ख़त्म होते ही धरने की नई तारीख का फैसला करेंगे। साद साबरी की रिपोर्ट में देखिए। बल्दियाती हल्का बंदियों पर MQM पाकिस्तान की कराची में धरने की कॉल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी MQM के मरकज बहादराबाद पहुंच गए। इतवार को फवारा चौक पर धरने की कॉल से दस्तबरदारी की दरखास्त कर दी। मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध का कहना था कि हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM के खदशात बरकरार हैं। 14 तारीख तक ये अमन एक्सरसाइज चल रही है। मेरी ये दरख्वास्त थी और वफाक की तरफ से कि उसको फ़िलहाल मौखर किया जाए। मज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं पीपल्स पार्टी से, वो MQM और उसकी राब्ता कमेटी की सवाबदीद है। कन्वीनर राब्ता कमेटी खालिद मकबूल ने कहा कि सिंध हुकूमत की गैर संजीदगी देखकर इंतहाई सख्त कदम उठाने की ठानी। हम इस अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं और ये कदम जो हमने उठाया इंतहाई बहुत मजबूरी में उठाया था। इस पर मशक हो रही है। उसके बाद MQM भरपूर तरीके से इस कदम को दोबारा उठाने का हक रखती है। इसकी तारीख का हम फैसला कर लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शफाफ हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को लेकर इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ साद साबरी, समा, कराची। एक और अहम मामला, हुकूमतें किसी और ने गिराई और इस्तेमाल हमें किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं कि उन्हें निकाल दिया जाए तो और बात है, इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं देंगे। मुल्क की माशी हालात देखकर नहीं लगता कि इलेक्शंस होंगे। हुकूमतें गिराए ना, हुकूमतें गिराए किसी और ने, हमें इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे जितना भी नाकामी होता है ना, नाकामी का सेहरा जाता है उस मासूम सियासतदानों का जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो उनके लिए ना कोई बोलता है। जितने भी क्राइसिस होते हैं वो कहते हैं इन्हीं की वजह से निकाल दिया तो और बात है, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, न इस्तीफ़ा दूंगा ना इस्तीफ़ा वो करूंगा, गवर्नमेंट गिराऊंगा। जिस तरह मुल्क की मामलात हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इस काबिल होंगे, हमारे पास इतना खर्चा है कि हम इलेक्शन पे जाएं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, हुकूमत ने IMF की सिफारिश पर बिजली के शोबे में नुकसानात घटाने की मनसूबाबंदी कर ली है। टैरिफ में इजाफे और सब्सिडी के खात्मे से रवां साल 280 अरब रुपए बचत का हदफ है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। आलमी मालियाती फंड से कर्ज प्रोग्राम में तोसी के लिए हुकूमती जतन जारी। पेश की शराइत पूरी करने के लिए पावर सेक्टर से मुताल्लिक कड़े फैसले हो गए।
दस्तावेज के मुताबिक बिजली के तमाम अनटारगेटेड घरेलू सारिफिन को हासिल सब्सिडी बतदरीज खत्म करने का मंसूबा है। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन को बोझ भी पहले से ज्यादा उठाना होगा। 1 मार्च 2023 से किसान पैकेज और जीरो रेटेड सनती शोबे की सब्सिडी खत्म करने से 65 अरब रुपए की बचत होगी। टेक्सटाइल, सर्जिकल गुड्स, लेदर, कारपेट और स्पोर्ट्स गुड्स का शोबा शामिल। जीरो रेटेड सेक्टर से 51 अरब जबकि किसान पैकेज पर सब्सिडी के खात्मे से 14 अरब रुपए बचाने का तखमीना है। बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए सहमाई टैरिफ बढ़ाने से 73 अरब रुपए हासिल होंगे। जून तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 31 अरब रुपए जबकि बिलों पर GST के जरिए 14 अरब वसूली का हदफ मुकर्रर। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी से भी 12 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। तवानाई शोबे में इस्लाहात नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत की जा रही हैं। अहम खबर आ गई है। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ है। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने अदालती फैसले को चैलेंज न करने का फैसला किया है। अब्बास नकवी से मजीद बात करेंगे। अब्बास, क्या मजीद डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, देखें, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक इजलास बुलाया हुआ था कानूनी माहिरीन का, और उसमें ये बैठ के तकरीबन 3 घंटे डिस्कशन हुई कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसको चैलेंज करना चाहिए या नहीं चैलेंज करना चाहिए। तो अब ज़राए का ये कहना है कि नून लीग ने यह फैसला किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा, और नून लीग का ये कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन अदालत में जाना चाहता है तो जाए, लेकिन नून लीग नहीं जाएगी क्योंकि नून लीग जो है उसने अपना पार्लिमानी बोर्ड भी बना लिया है, मुकम्मल तौर पर तैयारी है इलेक्शन की, और जब भी इलेक्शन होंगे तो नून लीग भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेगी और भरपूर अंदाज में अपने उम्मीदवार भी लेकर सामने आएगी। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मार्च, कारकुनों ने गुजरात में पड़ाव डाल लिया। काफिला कल रावलपिंडी के लिए रवाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुक्मरानों की गलत माशी पॉलिसियों ने मुल्क को कर्जों में जकड़ दिया। मसाइल के हल के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। ये हुक्मरान नहीं है, ये वो खिलौने हैं जो चाबी पर चलते हैं, और चाबी देने वाला अमेरिका है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके ऊपर 62,000 अरब का कर्जा कोई हमालिया रखा है। इनकी गलत माशी पॉलिसियों की वजह से हर पाकिस्तानी 2,70,000 रुपया का मकरूज। और जान की फिक्र न तंग गलियों की परवाह। गुलशन रावी में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। बिल्कुल, समा के नुमाइंदे उमर याकूब टीम इंचार्ज हाफिज आसिफ के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा उमर याकूब। जी बिल्कुल, आज लाहौर के इलाके गुलशन रावी में डॉल्फिन टीम ने एक डाकू को गिरफ्तार किया है, और वो बड़े ड्रामाई अंदाज में बल्कि फिल्मी अंदाज में डाकू की गिरफ्तारी अमल में आई है। उस टीम के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज आसिफ, उनसे बात करेंगे। मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और कोई चोट वगैरह की परवाह ना करते हुए मैंने सबसे पहले इनका पिस्टल पकड़ा है। पिस्टल पकड़ के और मैंने एक डाकू को फौरी भाग के पकड़ने की कोशिश की थी, तो वो एक घर का दरवाज़ा खोला देख के उस घर के अंदर चला गया, और मैंने उसके पीछे छत पे जाके उसे गिरफ्तार किया है। सीनियर अफसरान की तरफ से इनके लिए इनामात का ऐलान किया गया है, कैश रिवॉर्ड भी है और सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं, और वाकई ये दाद के मुस्तहिक हैं। जी उमर याकूब, आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बर्फबारी के बायस बंद सड़कों की बहाली का काम जारी है। सयाहती इलाके शारदा को जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक शारदा से केल और सरगन समेत दीगर इलाकों को जाने वाली सड़कों की बहाली का काम कल सुबह से शुरू किया जाएगा।